Karan, I have some problem in my throat. When I eat something, lot of oil or milk, I feel that something is there in my throat. I try to clear it, but it doesn't help. I went to doctor, but she didn't say anything about it. Why does it happen? Simple, warm, salty water के थोड़े से गागल्स किया करो. अगर उतने से ठीक नहीं हो तो आप फिर कुंजल क्रिया सीखिए. I hope all of you have taken the book Health and Healing Through Yoga. नहीं लिया है तो ले लीजिएगा. Please read that book. That would be a great help. और छोटे छोटे जो फिजिकल एलिमेंट्स होती हैं उनको दूर करने के अच्छे अच्छे यौगिक तरीके हमने उसमें कहे हैं. ट्विंकल, त्राटक चश्मा लगा के करूं कि बिना चश्मे के? भैया अगर आंखें कमजोर हैं तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा ना. अच्छा, मैथमेटिक्स आपका वीक है तो आज कल आपको वैदिक मैथमेटिक्स का कराया गया था. थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स को परसू कीजिए. यू विल बिगिन टू लव द डिजिट्स देन. अभी तो आई हेट मैथ्स, आई डोंट लाइक मैथ्स, ये थॉट मन में रखे हुए मैथ्स पढ़ते हो. कहां से आएगा मैथ्स? दीक्षा चावला. It is said we must compete with ourselves, or in case if you really want to compete with others, keep a healthy competition. But in my case, I have seen no matter how hard I try, there is somewhere an indirect jealousy which I realize later. Why is it? How to remove it and still be in competition? My dear, why do you want to be in a competition? How silly is that? It is just like white color is competing with black. How come you are this black? How come I am white? How come I cannot be black? Why can't you accept your individuality? आपकी जितनी क्षमता है उसको. तुम लोगों का हाल पता क्या है? वो कहानी है ना खरगोश और कछुए की. खरगोश क्या है? यही देखता रहा. कहाँ है? आ गया नहीं आया, आ गया नहीं, चल सो जाते हैं. और कछुआ वो किसी को देख नहीं रहा, वो धीरे धीरे चलता रहा. खरगोश महाराज सोए हैं, वो देख रहे थे ना उसको. अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, बड़ा टाइम है, अभी मैं तो भाग के पहुंच जाऊंगा. वो सो गया. खरगोश हारा और कछुआ. इसके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलते हैं? I would like to change the moral of this story. Those who don't compete with others win the race. यही देखते रहो. आया तो नहीं साथ में, आया तो नहीं साथ में. Why can't you see yourself as a unique personality? There is no one like you in this world. So be the best of you. Why do you want to compete with others? I am totally not in the favor of any kind of competition with others or with yourself. Lisa, my question is, when I practice meditation in starting 15-20 minutes, it is fine, a great enthusiasm is there. But later on, mind starts thinking about various things. I have no control on my thoughts. Then I get lazy. I want to ask how to control or overpower my thoughts. Number one, what you are doing is not meditation. When you do mantra jap, it is just mantra jap. Secondly, thoughts should not be a problem. Thoughts are just reminders what you have been doing whole day. So when the thoughts come, one thing is to be done is, don't be attached with it. Remain neutral. The thought will come like a cloud in the air, is floating. It comes in front of you and then it just goes away. Similarly, when you will not fight with your thoughts and remain calm, a thought will come and will go away.
It won't stay there for long. हरि ओम। बचपन में ध्यान भजन में मेरी बहुत रुचि थी, पर अब जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। 1 साल पहले मैंने योग निद्रा किया तो मन शांत होने लगता था, पर अब जब करता हूँ तो नींद आ जाती है। देख बेटा, जब आपके शरीर को नींद की ज़रूरत होगी योग निद्रा करते समय में, तब नींद आएगी ही, और वो अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जब हम अच्छी तरह सो नहीं पाते हैं कई दिनों तक, या शरीर बहुत थका हुआ होता है, तो ऐसे में योग निद्रा में नींद आएगी ही, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। दैट्स फाइन, एकदम इंजॉय दैट स्लीप। वो नींद बहुत अच्छी वाली होती नहीं, उसमें कोई सपना नहीं होता है और बड़ी गहरी नींद होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ध्यान में बैठने पर जो तुम कहते हो नींद आती है, तो उसमें अब तुमने ये तो नहीं लिखा कि ध्यान मतलब किस क्या है। देखो, आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं है, सिर्फ श्वास को देखने का नाम ध्यान नहीं है, मंत्र जप करने का नाम भी ध्यान नहीं है। तो अभी तो आपने ध्यान क्या है वो सीखा नहीं है, अभी तो समझा भी नहीं है। अभी तुम एक काम करो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा मंत्र अच्छा लगता है? बैठे बैठे मैं बताऊं। वाह वाह वाह, क्या बात है। बस तू वही किया कर, वही किया कर। वहाँ पर शिव जी की एक तस्वीर है? नहीं है, रख लेना वहाँ पर, और उस तस्वीर के सामने ज्योति जगा के माँ को कहना, वो जगा देगी, या तुम सीख लेना। और फिर ज्योत जगा के सामने वो चित्र है, चित्र को, शिव जी को, स्वरूप को देखते हुए, त्राटक करते हुए, और फिर तुम महामृत्युंजय का बहुत सुंदर मंत्र है ये। ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम मतलब त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यजामहे मतलब हम आपकी उपासना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, मेरे जीवन में सुगंध बढ़े। सुगंध किसकी? ज्ञान की, खुशी की, विद्या की, संगीत की, ललित कलाओं की। पुष्टिम, पुष्ट हों, स्ट्रांग हों। वर्धनम, बढ़ें। उर्वारुकमिव बंधनान, उर्वारुक का अर्थ होता है, जैसे अगर आपने कभी देखा हो, कुछ एक सब्जियां ऐसी होती हैं जब वो पक जाती हैं तो वो अपने आप नीचे गिर जाती हैं। तो उर्वारुकमिव, मेरे सब बंधन ऐसे ही गिर जाएं। उर्वारुकमिव बंधनान, मेरे सब बंधन गिर जाएं, और मेरे मन को मृत्यु के भय से मोक्ष मिले, मेरे मन में कोई भय ना हो। और याद रहे, सब भय वास्तव में मौत के ही भय होते, उन्हीं का ही प्रकार होता है। जिन्हें किसी भी प्रकार का भय महसूस होता हो, उन लोगों के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। आपको अन्य किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी मंत्र को अगर आप सुबह या रात सोने से पहले करते हैं, आपके मन के सब भय दूर हो जाएंगे। समय बहुत तेजी से भाग जाता है और बातें हैं आपके विषय में, जो प्रश्न हैं वो अभी भी बहुत से पड़े हैं। एक बहुत कुछ मैंने छांटे हैं जो अभी मैं लेना चाह रही हूँ। इस बेटी ने लिखा है कि इसके चाचा ने इसके साथ गलत व्यवहार किया था, दुष्कर्म किया था, जिसकी कुंठा वो आज भी भोग रही है। पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए वो सबको माफ़ कर देते हैं, पर मेरे साथ हुए इस अन्याय के कारण मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती हूँ, और बहुत डरती भी हूँ कि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना हो, और इसी दुख के कारण मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ।
और किसी पब्लिक फंक्शन पे भी जब जाती हूँ तो डर लगता है कि वो बंदा फिर वहीं पे होगा और मेरे साथ कुछ दोबारा ऐसी हरकत ना हो जाए। ऐसे में मैं क्या करूँ? हमारे समाज की ये बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा कलंक है ये, कि जब घर की किसी बेटी के साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार कर देता है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं चुप रहो, कहो मत, घर की बेइज्जती होगी। लेकिन लड़की के ऊपर जो बीता है उसको कोई भी महसूस नहीं करना चाहता। इतने संवेदनहीन हो जाते हैं लोग, घर की इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन बेटी के मन पर जो तकलीफ, जो कष्ट जो उसने भोगा है, उस त्रास को अनुभव नहीं करते हैं। बहुत दुखद बात है ये। ऐसे में तुम क्या करो? अब तुमने ना तो अपनी आयु लिखी है, मैं कह नहीं सकती हूँ, बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम खुद को एक तो वल्नरेबल मत रखो, डोंट फील वीक, एंड स्पेशली डू लॉट्स ऑफ महामृत्युंजय मंत्र, ताकि तुम्हारे मन से ये पुरुषों के प्रति जो भय आ गया है वो भय दूर हो। यू नीड नॉट बी फियरफुल, दैट वॉज अ मिस हैपनिंग, एक एक्सीडेंट था जो तुम्हारे साथ हुआ, उसका दुख त्रास उस बंदे को भोगना चाहिए जिसने ये कर्म किया। क्रूरता की हद होती है ये। एक मासूम छोटी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाना, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता है, और ये अक्षम्य अपराध है। कानून शायद उस बंदे को 7 साल की सज़ा देता है, लेकिन मेरी नज़र में उस आदमी ने उस व्यक्ति के, उस लड़की के तमाम आने वाले जीवन को बर्बाद कर दिया है। कहा जाता है इज्जत लूट गई, इज्जत नहीं लूटी, उसका मन लूट जाता है। तो ऐसी लड़की को बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत सा मंत्र जप करे, और अगर ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय का उसको बदला चाहिए, तो फिर हिम्मत करके पुलिस तक FIR करवाए। लेकिन अगर आप अकेली हैं इस सोच के साथ और घर वाले भी सपोर्टिव नहीं हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरी ऑप्शन बचती है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनिए, और फिर ये कोशिश करें कि कम से कम आप ये मैसेज दूसरे सब बच्चों और दूसरी सब लड़कियों तक पहुंचा पाएं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तुम्हें कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने ये कर्म किया उसको शर्म होनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी कठोर सच्चाई है, और ये ज़रूरी नहीं कि लड़कियों का ही शोषण हुआ हो, कई बार लड़कों का भी शोषण होता है। उनके टीचर्स, उनके ट्यूशन मास्टर्स, कभी कभी स्कूल के ड्राइवर्स, बसेस के ड्राइवर्स, कोई आस पड़ोस का इंसान, कोई घर का ही रिश्तेदार। सोडोमी इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी हर्टफुल, पेनफुल, बट ये हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसका शोर मचाना चाहिए, बताना चाहिए सबको, ताकि और कुछ नहीं तो उस बंदे को 4 लोग मिलके बेइज्जत तो करेंगे, जूता तो मारेंगे उसको। इतना वहशी जानवर जो है वो खुला छूटा नहीं घूमना चाहिए, पर डर को और शर्म को एक किनारे करके इस बात का विरोध करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। गौरव खत्री, ठीक, हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं देती हैं, हमारी इंद्रियां ही हमें पतन के रास्ते पे भेजती हैं। लाइफ में इंद्रियां की भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम इंद्रियों के नहीं सुनेंगे तो अपने शरीर को हार्म कर लेंगे। हमें इंद्रियों की कहाँ तक सुननी चाहिए और कब तक, ये हमको ना चलाए, हम इनको बुद्धि के अकॉर्डिंग यूज़ कैसे करें। गौरव, जो तुमने नहीं लिखा है मैं वो समझ रही हूँ कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। चूँकि तुमने नहीं लिखा है इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं समझ रहे हैं कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो, बट दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके। इंद्रियों की सुनना चाहिए, गलत बात। आपको पहले से ही बुद्धि की सुनना चाहिए। और हमारी इंद्रियां
हमको पतन के रास्ते पर कैसे ले जा सकती है अगर हमारी बुद्धि विवेकशाली हो तो। I don't know how many of you are getting this question or not getting this question. क्योंकि ये बड़ा सटल वे में पूछा गया सवाल है। Are you getting? Are you understanding what he is saying? इंद्रियां पतन के रास्ते पर ले जाती, समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलो, जिनको समझ आ रही है मैं उनके लिए, और जिनको नहीं समझ आ रही है मैं उनके लिए भी ये बात कहती हूँ। आपका शरीर और आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में तब तक नहीं रहेंगी जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें खाने की बात करें तो ये भी एक इंद्री है, जीभ, खाना। तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए? आपकी बुद्धि कह रही गला खराब है, मौसम खराब है, इम्तिहान सर पर है, खट्टा मत खाओ और आइसक्रीम मत खाओ। लेकिन आप कहते हो मेरी इंद्री मेरे बस में नहीं, इसलिए मैंने आइसक्रीम खा ली। क्या जीभ के पास अकल है? अकल तो एक ही जगह में है, यहाँ। तो यहीं से ऑर्डर आ रहा है ना। तो आप जीभ के ऊपर दोष कैसे डाल सकते हो? मेरी इंद्री ने मेरे पतन के रास्ते पे ले गई। आपकी जीभ थी, आपके पास दिमाग है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो जो इंस्टेंट खुशी मिलती है ना, जो तुम्हारा दिमाग मांग रहा था, उसको देने में जो वो थोड़ी देर की खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए आप लोग अपनी अकल को एक किनारे कर देते हो। वी हैव 10 senses, 5 of knowledge, 5 of action. नेत्र, कर्ण, नासिका, nose, smell power, tongue, taste power, ear to listen, to hear, and your skin, the sense of touch. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति हम इन इंद्रियों के द्वारा करते। ऐसे ही हमारे 5 कर्म करने के इंद्रियां हैं। हाथों से करना, पाँव से चलना, जीभ से बोलना, गुदा द्वार से वेस्ट को बाहर निकालना, और आपका जेनिटल which is the reproductive organ also, your sex organ. अब इन 10 की 10 इंद्रियों का अपना दिमाग नहीं है, इन 10 इंद्रियों को आपका दिमाग चलाता है। तो आप ये नहीं कह सकते मेरी इंद्रियों ने मुझको गिरा दिया। आप ये कह सकते हैं आपके दिमाग ने आपको वो काम करने पे मजबूर किया और आपने कर लिया। अब मुश्किल ये है, दिमाग करना भी चाहता है और दिमाग में ही ये ख्याल आता है ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। दैट कैन बी ड्रिंकिंग अल्कोहल, दैट कैन बी बियर पीना, वो सिगरेट पीना हो सकता है, वो चोरी करना हो सकता है, वो मैस्टरबेशन हो सकता है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो सकता है। आपका दिमाग कह रहा है मत करो, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि असल में आपका दिमाग चाह रहा है, इसलिए आप वो कर रहे हो। लेकिन दिल को सुकून देने के लिए आप कहते हो मैं चाहता तो नहीं हूँ करना, पर फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इंद्रियां मेरे काबू में नहीं। ना ना ना, आपकी इंद्रियों के पास अकल नहीं होती है, अकल दिमाग में है। लेकिन आपका दिमाग इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आपका मन बहुत जोरदार शक्तिशाली है, और मन जो चाहता है वो करवा लेता है। दिमाग आप सबके पास है, आप सबको मालूम है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप गलत काम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मन बेकाबू है, मन बड़ा शक्तिशाली है। ऐसे में ना इंद्री कुछ कर सकती है और न दिमाग कुछ कर सकता है। और मन के चाहने पर जब हम काम कर लेते हैं, फिर बाद में दिमाग बेचारा बैठा पछताता रहता है। तो एक काम करिए, या तो दिमाग की मत सुनिए और या तो मन को अपने नियंत्रण में रखिए। इंद्रियों का तो कोई दोष नहीं है। अब आंख खुली है, सामने नज़ारा दिख रहा है, अब आप अपनी आंख को थोड़ी फोड़ दोगे कि तुमको नज़ारा दिख रहा है। तुमको वो नज़ारा नहीं देखना तो अपनी आंखों को, दिमाग को कहो आंखें बंद कर ले या दूसरी तरफ देखे। अब आप देख भी रहे हो, मजा भी आ रहा है, और बाद में गिल्टी भी होते हो कि देखना नहीं चाहिए था।
जैसे तुमने नोट किया कोई आदमी पैसे गिन रहा हो तो दूसरे लोग भी देखने लग जाते. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, यू नो, समथिंग इज देयर. कोई पैसे गिन रहा हो ना तो बाकी भी वो भी गिनने लग जाते. वो तू क्यों गिन रहा है, तेरे पैसे थोड़ी. बोलिए ऐसे ही. ऐसे ही कोई अपने कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी चेक कर रहा हो. कोई लड़की अपनी अलमारी खोले तो उसकी जितनी फ्रेंड्स होंगी या जितने कजन्स होंगे, क्या है, देखो, दिखाओ दिखाओ. तो दिखाओ क्या, तुमको देना तो है नहीं उसने, तो देखना क्यों चाहते. बोले ऐसे. तो ऐसे ही बोल के आप अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर लेते हो. तो मजबूत बुद्धि अगर आपके पास होगी तो आपका मन चलायमान नहीं होता है. बाकी आंख बनी है देखने के लिए, पर क्या देखना क्या नहीं देखना, इसके लिए आपको आपकी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए. एक एग्जांपल मैं देती हूँ. इंटरनेट सबके पास है, गूगल सबको देखना आता है, यूट्यूब सबको देखना आता है, और जहाँ चांस मिले, जहाँ कोई और साथ में ना हो, तो सबसे पहले पोर्नोग्राफी साइट खोली जाती है. और फिर डरते भी हैं, छुपाते भी हैं. और ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है. ख़ास करके ये जो सेंटर्स बने हैं, अब तो इजी हो गए कंप्यूटर सबके पास, लेकिन पहले कंप्यूटर सेंटर्स होते थे, कैबिन्स बने हुए हैं. कैबिन्स में बैठ करके क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल. पोर्नोग्राफी देखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड साथ में ले जाते हैं. और ऐसी भी था कि वो ओनर इज गिविंग देम चांस टू सिट एज लॉन्ग एज दे वांट टू. प्राइवेसी मिल जाती है और पोर्नोग्राफी देख रही है. अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आंखें पोर्नोग्राफी देखना चाहती, तुम्हारा दिमाग पोर्नोग्राफी देखना चाह रहा है. तुमने एक चीज नोट करी, अगर आप कभी किसी कबीले की गरीब इलाके में, उड़ीसा में, तो हम जब गए वहाँ जगन्नाथपुरी से और आगे कहीं गए थे, तो रास्ते में गांव से कुछ निकले. गांव में जितनी महिलाएं मैंने देखी, उन्होंने ब्लाउज नहीं पहने हुए थे, सिर्फ कमर पर साड़ी लपेटी हुई थी और उसी का पल्ला जो है बस घुमाया हुआ है ऊपर, नो ब्लाउज. एंड लड़के हैं, आदमी हैं, सब आसपास निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, और कोई भी उनको नहीं देख रहा है. लेकिन पोर्नोग्राफी साइट्स में आप आधी नंगी स्त्रियों की तस्वीरें देखने की रुचि रख रहे हो. क्यों? एक मन की इच्छा है, शरीर की ज़रूरत होती है, हार्मोनल सिक्रीशंस है, अट्रैक्शंस होती है, और आपके सिविलाइज्ड सोसाइटी में आपको ऐसी औरतें तो दिखेंगी नहीं. कहाँ दिखेंगी? इंटरनेट पे दिखेंगी. इसलिए इंटरनेट पे बार बार खोलते हैं. दूसरी बात, समय के साथ आपको आपके माँ पिता या आपके टीचर्स सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं, उसके बारे में अवेयर नहीं करते हैं. इस उम्र में आकर के इसकी जिज्ञासा होती है. यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज. व्हेन नो वन टीचेज यू, देन यू लर्न इट थ्रू द इंटरनेट और यू लर्न थ्रू योर फ्रेंड्स, एंड देन यू वॉन्ट टू यूज दैट नॉलेज ऑल्सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है. पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी इंद्री का कसूर है उसमें. इंद्री का कसूर नहीं है, आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई है. नथिंग इज बैड, बट एवरीथिंग शुड हैपन इन इट्स ओन टाइम. मैरिज इज नॉट बैड, मैरिज इज वेरी गुड थिंग. लेट मी से इट, यू आर मैच्योर पीपल, आई कैन से दिस टू यू. सेक्स इज नॉट बैड थिंग, बट once you have finished your studies, once you are independent economically, and then you choose a partner, you get married, and that is a decent way to have a marital life. पर आप इतनी जल्दी में शादी, उसकी क्या जरूरत है? इतनी देर तक कौन वेट करे? और जब आप एक्सप्लोर करने लग जाते हो अपने आसपास, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आई नो इट इज़ वेरी कॉमनली हैपनिंग, खासकर बड़े शहरों में और ज़ोर से है, खुले से है. छोटे शहरों में थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन. शादी से पहले सेक्स हो रहा है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन स्कूल्स में बिक रही हैं. Who is doing this? Those
youths are doing this, who are impatient, who don't have understanding, who are not ready to wait for that right time and right partner, and who are so desperate that they wish to go into the experience. That's it. अब आप ये नहीं कह सकते ये कसूर आपकी इंद्रियों का है, ये कसूर इंद्रिय का नहीं है, ये कसूर आपके दिमाग का है। मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना गलत है, या शादी गलत है, या डेटिंग गलत है, या फ्रेंडशिप कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक वक्त है। ये चीज मैं अमेरिका में मैं देखती हूँ, कनाडा में देखती हूँ, इंग्लैंड में देखती हूँ। 14 साल की लड़की है और गोद में बच्चा लेके घूम रही है, स्कूल में जाती बच्चे को साथ लेके। 15 साल की लड़की है, स्कूल में बच्चा लेके जाती है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और फुल्ली प्रेग्नेंट है। What happened? She was trying to have fun with her friend and she got pregnant. वो खुद बच्ची है पर बच्चे को जन्म देने वाली। वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई बात नहीं, पैसे देती है, उनको फ्री में डिलीवरी करवा देती है, बच्चे के लिए भी पैसे देती है। बट इज इट राइट वे टू लिव? उसकी पूरी पढ़ाई करने का वक्त खराब हो गया, उसको अपने पाँव पे खड़े होने का वक्त खत्म हो गया, जिंदगी देखे बगैर वो इस तरह, और अनट्रेंड, और आगे बच्चा, उस बच्चे की सोचो क्या दुर्दशा होती होगी। इंद्रियां बेकाबू नहीं थी, दिमाग बेकाबू था। तो दिमाग हमको इसीलिए मिला है कि हम इससे सोचें और विचारें और फिर कुछ करें, और उसके लिए यू नीड टू बी aware, you need to be enlightened about certain things, and then you should decide what to do, when to do, and when to wait. क्या मतलब, अब ये जो तकलीफ है ना, ये दिमाग की तकलीफ है। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी होती है, पर उस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। जिंदगी बहुत कीमती है, इसको इस तरह से मिसयूज नहीं करना चाहिए।